picture and coming out. We are not putting any therapeutic agent, or we are not doing any angioplasty or any procedure. So therapeutic procedure में broadly divided into embolization, revascularization. Revascularization में angioplasty and stenting आते हैं. So these are all therapeutic procedures. Coming to the non-vascular, actually speaking, intervention radiology, 60-70% of the work is non-vascular only. Only 30% of the work is vascular. And non-vascular procedures include starting from fine needle aspiration cytology, what we call it as FNAC, biopsy, and after that there are drainage procedure. Drainage का मतलब है कि you are taking out something from the body. Either it could be infected fluid, what we call it as abscess, or infected urine by putting a tube, what we call it as a percutaneous nephrostomy, or infected bile from the biliary tree, what we call it as a percutaneous biliary drainage. और भी कुछ प्रोसीजर्स हैं जैसे नॉन वैस्कुलर में ट्यूमर एब्लेशंस लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन. So these are all come under non-vascular. So for you people should know broadly कि the intervention procedure, how they are divided: vascular, non-vascular. Vascular में diagnostic and therapeutic. What we do in our lab, most of them are therapeutic vascular procedures. And non-vascular procedures, we do it in both room number 60 and 61, mainly 60 under ultrasound guidance. And in the lab also, in the 80 and lab, we do the percutaneous nephrostomy, biliary drainage, okay, and radiofrequency ablation. So in my talk, I will be discussing under these following headings, mainly what are the hardwares we require for doing these procedures, what are the type of imaging guidance for each type of procedure we use, and some basic principles. Hardware, mainly any intervention, it involves few basic hardwares, same hardwares use होते हैं. Mainly it starts with the needles. So whether you are puncturing the artery, vein, or you want to take a sample, we need a needle. Okay. So needles are broadly divided into various types of needles. One is the aspiration needle. Aspiration needle mainly used for the cytological analysis like FNAC. Okay. So these are usually, the needles are described in gauge. Gauge matlab, so suppose when we say it is 20 gauge, the gauge is nothing but the thickness of the needle. So when your number increases from 20 to 25, the thickness of the needle becomes smaller and smaller. So that means 15 gauge needle is much thicker, 25 gauge needle is much thinner. ठीक है, हम usually FNAC के लिए we use 21-22 gauge. अगर बहुत ही critical location में है तो we may go for 25 gauge, which is usually less traumatic. So ideally 21-22 gauge sufficient. ठीक है. So the aspiration needles further divided into Chiba needle. Chiba needle is nothing but a very long thin needle. It is usually 22 gauge. ये नीचे वाला panel है ना, एक second pointer. Okay, this is the Chiba needle, which is usually longer, usually used for a deep-seated lesions. Okay, and this is the LP needle, which are commonly used for most of the procedures. Like, मतलब इसका length होता है 10 centimeter, इसका length होता है 25 centimeter. ये Chiba needle का usually the thickness is 21 or 22 gauge, but LP needle we have all sizes, 18 gauge, 16 gauge, 20. Okay, these are usually जो LP needles है वो most of the time we use the LP needles. और एक needle होती है hypodermic needle. Hypodermic needle वो है जो syringe के साथ लगी होती है, छोटा वाला length. Usually
2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लेंथ होता है, उतना ही वो यूजुअली फॉर थायराइड, स्किन, छोटे छोटे बहुत ही सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के एफएनएसी के लिए ये हाइपोडर्मिक नीडल यूज करते हैं. फॉर स्लाइटली डीप सीटेड वी यूज स्पाइनल नीडल, और बहुत डीप है, रिट्रोपेरिटोनियम में है या बहुत ही डीप सीटेड है, देन वी यूज अ चिबा नीडल. नाउ कम्स दी बायोप्सी नीडल. एफएनएसी का प्रॉब्लम ये रहता है कि जो सैंपल आप लेते हैं वो बहुत ही कम होता है. कभी कभी आपकी रिपोर्ट सैंपल बेस्ड वो नेगेटिव आ जाते हैं बिकॉज सैंपल इज इनएडेक्वेट. दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. बायोप्सी नीडल बायोप्सी तब करते हैं कि जब आपके पास जो सैंपल लेने वाला एरिया है दैट एरिया इज मच बिगर. ठीक है, आपके पास इजीली टिश्यू कट कर सकते हो. अगर जो सैंपल लेने वाला एरिया अगर बहुत ही छोटा है तो आप यूजुअली एफएनएसी करते हो. अगर बड़ा एरिया है, मोर देन 2 सेंटीमीटर साइज का लीजन है, देन यू कैन गो फॉर बायोप्सी. बायोप्सी की अच्छी बात यह है कि हाँ, रिजल्ट पॉजिटिव आने की चांसेस ज़्यादा रहती है एंड बार बार पेशेंट को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट बायोप्सी के लिए इम्पोर्टेंट यही होता है कि जो एरिया आप बायोप्सी लेना चाहते हैं या लीजन लेना चाहते हैं वो एक अच्छे साइज की होना चाहिए. एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर साइज होना चाहिए. अगर वो बहुत ही 1 सेंटीमीटर का लीजन है तो आप बायोप्सी नहीं कर सकते. सो अगेन बायोप्सी नीडल भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म they are basically divided into manual, ये मैनुअल नीडल होता है, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक. अगेन जब आपके पास बायोप्सी नीडल का एक पैकेट आता है तो उसमें 3 चीजें लिखी जाती है. लेंथ ऑफ द नीडल, थ्रो का मतलब कितना लेंथ ऑफ द टिश्यू आती है, और गेज. तो गेज इज द थिकनेस, थ्रो मतलब कितना लेंथ ऑफ द टिश्यू आप कट करेगा वो, और लेंथ है कि पूरा बायोप्सी गन का लेंथ. अगेन वी हैव कोएक्सियल सिस्टम, नॉन कोएक्सियल सिस्टम. मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, आइडिया हो जाएगा. ये है मैनुअल नीडल. दिस इज सॉरी दिस इज मैनुअल नीडल. मैनुअल मीन्स आप इसको बोन यूजुअली यूज फॉर बोन बायोप्सी. ये जमशेदी नीडल बोलते हैं. जब ये नीडल, ये ट्रोकार है और ये स्टिलेट है, ये दोनों मिला के बोन के अंदर भेजेंगे और उसके बाद ये स्टिलेट को निकालेंगे. देन मैनुअली विथ हैंड वी with screw movement we push this needle inside the body into the bone, into the bone. तो देन वो बोन का टिश्यू इसके अंदर चला जाता है. फिर बाहर निकाल के ये स्टिलेट, ये पुशर होता है, ये पुशर से पुश करेंगे तो ये सैंपल बाहर आ जाएगा. देन वी विल पुट इट इन द फॉर्मेलिन बॉटल. ठीक है, ये टिश्यू है. ये पूरा का पूरा मैनुअल है, इसमें कोई बटन नहीं है. दूसरा आता है कि फुल्ली ऑटोमेटिक. ये फुल्ली ऑटोमेटिक नीडल है. इसमें 2 बटन होते हैं, ये वाली बटन. सो इसको लोड करना पड़ता है. जब लोड होगा, व्हेन यू बॉडी में जब अंदर जाके जब लीजन के अंदर ये पहुंचते हैं, ये पिंक बटन जैसे प्रेस करते हैं ये ऑटोमेटिकली टिश्यू को कट करके अंदर ले लेता है. ठीक है, देन वी हैव टू प्रेस 1 बटन एंड दैट टिश्यू विल बी ओपन. उसको निकाल के फिर सैम्पलिंग बॉटल में डालते हैं. और दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटेड. सेमी ऑटोमेटेड का एक एडवांटेज रहता है कि आपके 2, इसमें ऑटोमेटिक में एक ही बटन से नीडल पुश होके कट होके तुरंत आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता. जब सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि सपोज आपने ये नीडल टिप है, ये लीजन है, आपके नीडल यहाँ तक आया, ये नीडल है सेमी ऑटोमेटिक का. देन यू पुश दिस कटर. जब जैसे पुशर कटर को पुश करोगे, ये नीडल का कटिंग पार्ट लीजन के अंदर चला जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद और एक बार बटन प्रेस करते ही ये टिश्यू कट करके फिर वापस आ जाएगा. सो सेमी ऑटोमेटिक का थोड़ा सा लिबर्टी ये रहती है कि आपको कंट्रोल रहता है. यू कैन बी वेरी केयरफुल, आपकी नीडल लेंथ कहाँ जा रही है, क्या है.
So usually this is used for lung, liver biopsy. ये बहुत ही considered relatively safer. ये यूजुअली ऑटोमेटिक यूजुअली किडनी बायोप्सी के लिए, ब्रेस्ट बायोप्सी के लिए करते हैं. मैनुअल यूजुअली यूज फॉर द बोन बायोप्सी. ठीक है. और एक सिस्टम होता है कोएक्सल. कोएक्सल का मतलब होता है पहले एक आउटर नीडल डालते हो आप. ठीक है. आउटर नीडल डाल के इसके स्टिलेट निकालने के बाद बायोप्सी गन भेजते हो. कोएक्सल का एडवांटेज ये रहता है कि आप मल्टीपल पासेस ले सकते हो एक ही पंक्चर करके. सपोज आप लंग बायोप्सी कर रहे हो या मीडियास्नल बायोप्सी कर रहे हो, बार बार अगर 3-4 सैंपल लेना है तो आप बार बार बायोप्सी गन को बार बार बॉडी को पंक्चर नहीं करना चाहिए. एक ही बार पंक्चर करोगे, ये अंदर रहेगा लीजन के अंदर, उसके अंदर से ये बायोप्सी गन जाएगा. समझ लो. तो दैट इज व्हाट वी कॉल कोएक्सल सिस्टम. सो नाउ यू अंडरस्टूड एफएनएसी नीडल, बायोप्सी नीडल्स. अभी आती है नॉन वैस्कुलर में लाइक ड्रेनेज प्रोसीजर्स होते हैं, या कलेक्शन ऑफ पस, ड्रेनेज ऑफ पस और ड्रेनेज ऑफ इन्फेक्टेड यूरिन, ड्रेनेज ऑफ इन्फेक्टेड बाइल, पीटीबीडी जैसे हम बोलते हैं, पीटीबीडी बोलते हैं, पीसीएम या अपसेस ड्रेनेज. उसके लिए इनिशियली हमें एक बड़ा नीडल डालना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड एज अ पंक्चर नीडल. इट इज यूजुअली 17 गेज और 18 गेज. ये ऐसा नीडल यूज करना चाहिए कि जिसके अंदर हमारा गाइड वायर आराम से पास हो सकता हो. सो ये पंक्चर नीडल है. सो यूजुअली स्टैंडर्ड भी पीटीबीडी अपसेस ड्रेनेज के लिए ये नीडल यूज करते हैं. फॉर वैस्कुलर पंक्चर लाइक आर्टरी पंक्चर करते हैं, वेन पंक्चर करते हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप की नीडल यूज करते हैं. अब एग्जांपल बताता हूँ. ये नीडल होती है, ये इसके अंदर स्टिलेट नहीं है. स्टिलेट का मतलब होता है ये कैनुला है, इसके अंदर एक ब्लंट एंड ब्लंट पार्ट होता है. ये है ना, ये देख रहे हो, ये इसको स्टिलेट बोलते हैं. तो वो नहीं होता है तो इसको बोलते हैं हॉलो नीडल. अगर इसी नीडल के अंदर और एक ब्लंट नीडल जाती है उसको स्टिलेट बोलते हैं. ये इसको बोलते हैं हॉलो नीडल विथ स्टिलेट. ठीक है. और बोथ कैन बी यूज, बट ये हम लोग यूजुअली मेडिकट यूज करते हैं, ये वाला जैसे 16J का कैनुला. और एक नीडल होती है माइक्रो पंक्चर सेट. माइक्रो पंक्चर सेट का मतलब होता है ये 21 गेज का होता है. 21 गेज का आपने नीडल लिया, आर्टरी या वेन पंक्चर किया, उसके अंदर एक पतला सा गाइड वायर जाता है. गाइड वायर डालने के बाद देन वो उसके ऊपर से शीट डालते हैं. तो these are all vascular puncture needles. Hollow needle without stilate, hollow needle with stilate और माइक्रो पंक्चर सेट. आपको पता होना चाहिए कि वैस्कुलर पंक्चर के लिए क्या क्या टाइप के नीडल यूज करते हैं. एक बार आपने पंक्चर किया, कलेक्शन को पंक्चर किया, या पीसीएस को पंक्चर किया, या बिलियरी ट्री को पंक्चर किया, और आर्टरी को पंक्चर किया, या वेन को पंक्चर किया, उसके बाद आपको उस कलेक्शन के अंदर जाना है. वो जाने के लिए आपको एक वायर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं गाइड वायर. सो गाइड वायर का डेफिनेशन ये होता है कि इट इज अ थिन वायर यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द कैथेटर. सो ये नीडल के अंदर जाता है. नीडल के अंदर ये भेजने के बाद नीडल को बॉडी से हटा देते हैं. अब आपकी गाइड वायर बॉडी के अंदर है, आर्टरी के अंदर है, वेन के अंदर. सो ये गाइड वायर देज आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और निटिनॉल, और उसके ऊपर एक कोटिंग होती है टेफ्लॉन की. वो हाइड्रोफिलिक कोटिंग होती है. जब भी वो वाटर के सलाइन के साथ कांटेक्ट में आएगा वो स्लिपरी होती है. सो गाइड वायर इज अ वायर यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द कैथेटर. और अगेन गाइड वायर कैसे साइज मेजर किया जाता है, दैट इज मेजर्ड इन इंचेस. ये देख रहे हो आप डबल मार्क, ये डबल मार्क है ना, ये दिस सजेस्ट इंच. हम जब डिस्क्राइब करते हैं या सिस्टर को या रेजिडेंट को बोलते हैं कि ये गाइड वायर दो, हम बोलते हैं वो 18 गाइड वायर दो, वो 35 गाइड वायर दो, और वो 32 गाइड वायर दो. ठीक है. ये इंच में मेजर किया जाता है. सो जैसे जैसे आप इंच बढ़ेगा, 1/4 इज थिनेस्ट. 1/4 भी है हमारे पास,
वो 1.8 भी है, वो 3.5 भी है, वो 3.2 भी है। जैसे मैं जो लार्जेस्ट जो डायमीटर हमारे पास अवेलेबल है वो 3.8 है, वो 3.8। ठीक है। सो हमारे पास ये टेर्मो हाइड्रोफिलिक वायर होते हैं और एम्प्लांट्स वायर भी होते हैं। एम्प्लांट्स वायर इज मेटालिक, ये यूजुअली नॉन वैस्कुलर के लिए यूज करते हैं, और टेर्मो यूजुअली वैस्कुलर वर्क के लिए यूज करते हैं। बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों को अलग अलग सिचुएशन में दोनों को यूज किया जाता है। और अगेन हाइड्रोफिल वायर की टिप अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट बोलेंगे, अगर बेंड है, जैसे ये बेंड है, उसको जे टिप बोलते हैं। ठीक है। सो 3-4 चीज आपको पता होना चाहिए। गाइड वायर कितने टाइप के होते हैं, यू कैन से देम कि टेर्मो और मेटालिक, नॉन मेटालिक, और कैसे मेजर किया जाता है, दे आर मेजर्ड इन इंच, और वो किस मटेरियल से मेड बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील और निटिनॉल, और उसके ऊपर कोटिंग होती है। और गाइड वायर का डेफिनेशन ये होता है कि इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द कैथेटर। तो अब आपने पंक्चर किया था, उसके बाद गाइड वायर डाली, नीडल को बाहर निकाला, ये गाइड वायर की ये होता है। इसके अंदर जब क्रॉस सेक्शन देखोगे तो क्या बना होता है, ये मेटालिक कोर है, ये व्हाइट वाला, ये मेटालिक कोर है, उसके ऊपर ये टेफ्लॉन की कोटिंग है, ये ब्लैक वाला। ठीक है। नाउ उसके बाद गाइड वायर अब अंदर है, गाइड वायर के ऊपर कुछ डायरेक्टली कुछ भी कैथेटर वैथेटर चढ़ती नहीं है। वैसे अब स्किन से लेके सपोज आपने ये स्किन है, सॉरी एक डायग्राम बना देता हूँ, ये स्किन है और ये कलेक्शन है। ठीक है, आपने नीडल से पंक्चर किया, ये नीडल है, उसके अंदर से आपने गाइड वायर डाली, गाइड वायर अंदर लूप बन गई इसे, फिर उसके बाद ये नीडल बाहर हटा दिया, तो अब कलेक्शन के अंदर अभी वायर है। तो इसके ऊपर कैथेटर चढ़ाना है तो पहले ये स्किन से लेके ये कलेक्शन की बीच वाला टिश्यू है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एक ट्रैक बनानी पड़ेगी। वो ट्रैक बनाने के लिए आपको डायलेटर यूज करते हैं, डिफरेंट साइजेस की। तो ग्रेजुअली यू विल फिर डायलेट करते जाओगे। पहले 6 फ्रेंच लिया, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है। तो ऐसे सपोज आपने 10 फ्रेंच की साइज की कैथेटर डालने की कोशिश सोचा है, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द कलेक्शन। अगर बहुत ही थिन है, जैसे नीडल डाला, अगर आपकी पस हो, यूरिन हो, बहुत ही क्लियर है, आराम से आ रहा है, तो आप 8 फ्रेंच डाल सकते हो। अगर बहुत थिक है पस, देन वी हैव टू पुट 10 या 12 फ्रेंच कैथेटर। तो जो भी आपने कैथेटर डिसाइड किया, वहां तक आपको ट्रैक को डायलेट करनी पड़ेगी उसकी भी। सो द डायलेटर इज नथिंग बट एक्चुअली यू शुड कॉल इट एज देम एज अ फेशियल डायलेटर्स। So they are used to create a less traumatic track in the tissues from skin to the target area. And these are made up of Teflon, plastic tubes होते हैं। और उसके बाद तो 1 by 1 पहले स्मॉल साइज से लेके लार्ज साइज तक यूज करते हैं। दे आर मेजर्ड इन फ्रेंच। सो 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.3 mm। ठीक है, 3 फ्रेंच का अगर है तो इट विल कम अराउंड 1 mm। ठीक है। सो यू शुड नो व्हाट इज फ्रेंच, हाउ दीज नीडल को किस में मेजर किया जाता है, बायोप्सी गन किस में मेजर किया जाता है, गाइड वायर किस में मेजर किया जाता है, डायलेटर किस में मेजर किया जाता है। यू शुड नो द एसआई यूनिट। फिर एक बार अब
आपने पहले नीडल डाला, गाइड वायर डाली, नीडल को बाहर निकाला, गाइड वायर के ऊपर ट्रैक बनाया, अब आती है ट्यूब डालना. So we have various plastic tubes. ये है ना? So catheters are nothing but a plastic tubes. These are placed inside the collection or in the biliary